بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 سالہ دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو میرے کمرے میں سونے کی ضد کرتا۔ میں بھی اس سے لاڈ پیار کرتی تھی، اس لیے شوہر کے منع کرنے پر بھی میں اسے اجازت دے دیتی۔ لیکن ایک دن شوہر گھر نہ تھا تو میں نے منع کرنا چاہا، پر وہ نہ مانا۔ آخر میں نے پاس لا لیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ کچھ رشتوں کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں، پر وہ رشتے آخر میں ہمیں ایسا دھوکہ دے جاتے ہیں جو ساری عمر بھول نہیں سکتے۔ اور یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے اپنے دیور کو دیکھا۔ میرا دیور جو ابھی کم عمر ہی تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بہت منوس تھا۔ میں خود اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتی تھی۔ میرا شوہر اگر اسے ڈانٹ دیتا تو میں اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی تھی۔ جب تک میرا دیور نہ مانتا، میں بھی اپنے شوہر کی بات نہیں سنتی تھی۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے شکوہ کرتا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو اہمیت دیتی ہو، اور میں مسکرا دیتی۔ میرا دیور اسکول جاتا تھا۔ وہ ابھی 14-15 سال کا تھا، لیکن قد میں وہ میرے شوہر کے برابر تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ سیدھا میرے پاس آتا تھا، اور آتے ہی کہتا، بھابھی اتنے پیسے چاہیے، اور میں بنا پوچھے اسے پیسے تھما دیتی۔ جانتی تھی بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، کل کو کالج بھی جائے گا۔ لڑکوں کے 100 شوق ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی اکلوتی بھابھی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پر ذرا تصور کریں کہ وہی دیور اگر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ہاں بالکل، انسان صدمے میں چلا جاتا ہے، اور اس دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ہمارے کمرے میں سونے کی ضد کرتا تھا، اور میں بھی اس کی بات مان لیتی، جبکہ میرے شوہر کو غصہ آتا تھا۔ وہ کہتا کہ میاں بیوی کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اور اب بڑا ہو گیا ہے، اسے اب زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں سوئے۔ لیکن میں ہنس کر اس کی بات ٹال دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ میرا شوہر اکثر مجھ سے خفا رہتا، لیکن میں پھر بھی اپنے دیور کی بات مانتی اور اسے زیادہ اہمیت دیتی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس دن دیور ہمارے کمرے میں سوتا، میں اور میرا شوہر اگلے دن بہت لیٹ اٹھتے تھے، اور ہم رات کو جلدی سو جاتے تھے، پھر بھی صبح لیٹ اٹھتے تھے۔ اس دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ میرا دیور باہر سے آیا، رات کا کھانا کھایا اور کہا کہ بھابھی آج میں نے آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ آج شوہر بھی گھر نہیں تھا۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں دیور کو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پاس لاؤں۔ میں نے چائے پیتے دیور کو دیکھا، پہلے جیسا بچہ نہیں رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں اسے فوری کوئی جواب نہیں دے پائی۔ وہ شاید میری پریشانی بھانپ گیا تھا، تبھی بولا کہ بھابھی اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سونا تو میں نے آپ کے کمرے میں ہی ہے، آخر آپ میری ماں جیسی ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس کی بات سن کر میری ساری جھجک دور ہو گئی، اور میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی۔ دیور نے کہا کہ ابھی آپ سو جائیں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیور باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے فون پر بات کرنا شروع کر دی، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دیور آج بھی میرے کمرے میں ہی سوئے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دیور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ وہ اپنے اور میرے لیے آئس کریم پلیٹ میں ڈال کر لایا۔ میں اس وقت ڈائٹنگ پر بھی تھی۔ میں نے دیور کی نظروں سے بچ کر وہ پلیٹ بیڈ کے نیچے رکھ دی اور ظاہر کیا کہ ساری آئس کریم کھا لی ہے۔ اس کے بعد میں بیڈ پر سو گئی اور دیور صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کرتا رہا۔ رات کو اچانک عجیب سی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ لی تو زیرو بلب کی روشنی میں مجھے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کوئی کھڑا نظر آیا تھا۔ خوف سے میری آنکھ پھٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ میرا دیور تھا جو میرے شوہر کی وردی پہنے کھڑا تھا۔ میرا شوہر جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اور اس وقت دیور نے شوہر کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آہٹ پر دیور نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی ساکتا رہ گیا۔ اسے شاید میرے جاگنے کی فکر تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ نبیل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بھائی کا یونیفارم پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ اسے پہلے کہ میں مزید کچھ کرتی،
देवर ने आगे बढ़कर एक रुमाल मेरे मुंह पर रख दिया। मैंने मज़ाहमत की। थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आई तो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। मेरा देवर मुझे रस्सियों से बांधकर चला गया। मुझे इसके आखिरी अल्फाज याद थे जो इसने मुझे बेहोश करते वक्त बोले थे कि भाभी, आपकी वजह से मैं अपना प्लान ख़राब नहीं कर सकता। ये याद करते ही मैं रो पड़ी। मेरा मोबाइल कुछ फासले पर पड़ा बज रहा था। मेरे शोहर का फ़ोन आ रहा था, जबकि मैं इस काबिल नहीं थी कि फ़ोन उठा सकती। मेरे रोने में शिद्दत आ गई कि देवर ने मुझे कैसा धोखा दे दिया था। जिस भाभी को वो अपनी माँ कहता था, इसी भाभी को रस्सियों से बांधकर चला गया था। सुबह से शाम हो गई। मेरा जिस्म अकड़ चुका था। मैंने हाथ खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मेरा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वैसे मेरा बुरा हाल था। मुझे ये खौफ सता रहा था कि घर में कोई नहीं था। शोहर भी 3-4 दिन का कहकर गया था। अगर वो ना आता और देवर भी ना आता तो मेरी क्या हालत होती। मैं इसी खौफ के ज़ेरे असर थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और मेरा शोहर अंदर आया। इसे देखकर पहले तो मुझे यकीन ना आया और फिर मैं रोने लग गई। वो भी कितनी देर ही मुझे हैरत से देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और परेशानी से पूछा कि तुम ठीक हो? ये सब किसने किया? मैं रात से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरे शौहर ने मुझे रस्सियों से आज़ाद किया और मैं इसे लिपट कर रोने लग गई। इसने पूछा कि ये सब किसने किया, तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे हाथों में पलकर जवान होने वाला मेरा देवर मुझे ऐसे धोखा देगा। मैं रो रही थी। शौहर ने मेरे आंसू साफ किए और कहा कि मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। इसने कहा कि मैं रात से तुम्हें फ़ोन कर रहा था पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं डर गया था कि खुदा न खास्ता कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। फिर मेरे शौहर ने मुझे जो बताया इसने मुझे हिलाकर रख दिया। दरअसल मेरे शौहर को मेरे देवर के नंबर से ही फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला मेरा देवर नहीं था, कोई और था और इसका कहना था कि अपने भाई की आफियत चाहते हो और इसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो इसे कहो हमारे रास्ते में ना आए। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गई। मामला उलझ चुका था। मैं अपने देवर को गलत समझ रही थी जबकि यहाँ कहानी ही कुछ और थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि देवर आपका यूनिफॉर्म पहन कर गया है। सबसे पहले तो आप जेल जाएं और जेल का विजिट करें, वहाँ देखें कि सब खैर खैरियत है ना। मेरे शौहर ने इस बात में सर हिलाया और इसके बाद वो चले गए। 2 घंटे बाद मुझे जो पता चला वो सब सुनकर तो मैं चकरा कर रह गई। मेरा देवर हर महीने की आखिरी तारीख को जेल जाता था और वहाँ के कैदियों को नशा पहुँचाता था और हर वो नाजायज़ चीज़ फराहम करता था जो कैदी कहते थे। जेल का मतहत हमला कुछ इस वजह से भी खामोश था कि नबील सुपरिटेंडेंट का भाई था और दूसरी बात ये कि मेरे देवर ने सबको खरीद रखा था। वो सबको हर महीने अच्छी खासी रकम देता था और महीने की आखिरी तारीख को मखसूस कैदियों को तमाम नाजायज़ चीज़ें फराहम करता। ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। भला हमने कब नबील की ऐसी तरबियत की थी कि वो ऐसे काम करे। और अगर मेरा देवर ड्रग्स सप्लाई करता था तो यकीनन वो खुद भी लेता होगा। मेरी तो रूह फना हो रही थी। जिस देवर को मैंने छोटे भाइयों की तरह पाला उसने हमारी मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो इतने गलत कामों में पड़ गया। या खुदाया, मुझसे कहाँ गलती हो गई देवर की तरबियत में जो वो इस हद तक पहुँच गया था। मैं रोने लगी थी पर फिर मेरे शौहर ने अगली खबर दी। वो मज़ीद हैरान कुन थी। जेल के अमले ने बताया था कि पिछली रात मेरा देवर जेल गया तो उसने कैदियों को नशा नहीं दिया और ना कोई और नाजायज़ चीज़ फराहम की थी, बल्कि इसने अमले से कहा था कि आज के बाद इन लोगों को कुछ भी फराहम नहीं करना। वो काफ़ी परेशान था और फिर चला गया और तब से वो गायब था। मैं परेशान हो चुकी थी। ये मामला तो उलझता ही जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था सच क्या था और झूठ क्या था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। इसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने देवर पर गुस्सा तो बहुत था पर मुझे इसकी खैरियत भी अजीज थी। मैंने नमाज पढ़ी और इसकी सलामती की दुआ करने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था लेकिन मेरे शौहर का कोई फ़ोन नहीं आया था। मैं इंतज़ार में सुलगती बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। मुझे तेज़ बुखार था और ये पूरी रात और सारा दिन रस्सियों से बंधे रहने की वजह से हुआ था।
मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। दिल था कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊं, पर टेंशन ऐसी थी कि नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी मैं इसी कश्मकश में थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और होती चली गई। कोई पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा था। पहले तो मैं डर गई, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो देवर को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। मेरे दरवाजा खोलते ही वो तेजी से अंदर आया और झटके से दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका इसने हाथ पकड़ रखा था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मेरा देवर खून से नहाया हुआ था और वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। मैंने इस लड़की की मदद से देवर को अंदर बिस्तर पर लटाया और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर देवर की मरहम पट्टी की। वो लड़की सूखे पत्ते की तरह लर्ज रही थी। वो भी कम उम्र ही थी, पर इसके चेहरे पर हद से ज्यादा गम और दुख था। देवर अब सुकून और दवा के नशे में सो रहा था। कुछ देर बाद शोहर का फोन आ गया। इसने पूछा कि नबील पहुंच गया। मैंने कहा जी पहुंच गया, और फिर घंटे बाद मेरा शोहर भी घर आ गया। इस दौरान मैंने इस लड़की से कोई बात ना की। वो कभी रोने लगती और कभी चुप हो जाती। वो बार बार देवर की पेशानी को छू कर देख रही थी और छोटी सी आहट पर खौफ से कांपने लग जाती। जब शोहर घर आया तो देवर की ये हालत देखकर इसका गम और गुस्से से बुरा हाल हो गया। जब मैंने शोहर से पूछा तो इसने बताया कि ये लड़की नबील के स्कूल की है। वो इसे पसंद करता था। फिर अचानक ये लड़की गायब होगी। एक दिन मिली तो नबील ने इसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कहाँ गायब हुई थी। फिर इस लड़की ने बताया कि इसे अगवा कर लिया गया था। ये ड्रग्स सप्लाई करने वाला गैंग था। वो लड़की को छोड़ने पर राजी नहीं थे। जब इन लोगों को नबील का पता चला तो इन्होंने लड़की को कैद कर लिया और नबील से कहा कि तुम जेल में मौजूद हमारे साथियों को इनकी ज़रूरत की चीज़ पहुंचाओगे और बाकी कैदियों को मंशियात सप्लाई करोगे। और मेरा देवर इतना अक्लमंद नहीं था। वो हर महीने की आखिरी तारीख को मुझे और मेरे शोहर को नशा और दवा खिलाकर मेरे शोहर की यूनिफॉर्म पहनकर जेल जाता और इनका सारा काम करता। लेकिन अब वो इस काम से तंग आ चुका था। वो मासूम लोगों को नशे पर नहीं लगाना चाहता था, जबकि दूसरी जानिब वो गैंग के लोग लड़की को बाहर भेजने के चक्कर में थे ताकि वो लड़की बैरून मुल्क स्मगलिंग का काम कर सके। जब देवर को पता चला तो इसने इस गैंग का मुकाबला करने की ठान ली। सबसे पहले इसने जेल के कैदियों को सप्लाई का कोई सामान नहीं भेजा। फिर इसने प्लान बनाया। वो लड़की को इस गैंग के जंगल से निकाल लाया था, पर इसमें वो खुद जख्मी हो चुका था। पर इससे पहले पुलिस को गैंग की सारी मालूमात दे दी थी। गैंग और पुलिस के बीच जबरदस्त किस्म का तसादम हुआ था। कुछ कांस्टेबल जख्मी भी हुए। गैंग के कई लोग पकड़े जा चुके थे और कई भाग चुके थे। और जबकि मेरा देवर जख्मी पड़ा था, इसे मेरे शोहर ने ही घर भेजा था। ये कहानी सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरा देवर इस उम्र में भी किस कदर बुलंद हौसले वाला था, जो अपनी मोहब्बत को आज़ाद करवाने में कामयाब हो चुका था। और मेरी तरबियत भी ज़ाया नहीं गई थी कि इसे जल्द ही गलत काम का एहसास हो गया था। होश में आते ही देवर ने मुझसे और मेरे शोहर से रो रो कर माफ़ी मांगी। हमने खुले दिल से इसे माफ़ कर दिया कि इसकी बेवकूफ़ी से ही सही, पर एक बड़ा गैंग पकड़ा गया था। मैं इस लड़की का हाथ देवर के हाथ में थमाते अपने शोहर के साथ कमरे से बाहर निकल आई ताकि इन दोनों के निकाह का इंतज़ाम कर सकें। बेशक मोहब्बत की हसीन मंजिल निकाह ही है। अगर आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।